ओके, तो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग खुशनूर, कि ये जो बात है ना, जो कैलकुलेशन के परे जाके है, ये आप लोगों को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये इस असाइनमेंट का पर्पस है कि लर्निंग कंपोजिशन एट दैट लेवल और अंडरस्टैंडिंग कंपोजिशन एट दैट लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ये वाला फ्रेम देखोगे, इस फ्रेम में क्या हो रहा है, तो इस फ्रेम में क्लियर है कि इस देखो ये फ्रेम में क्या हो रहा है। ये it gives a kind of feeling of emptiness. Now it also makes you Ma'am, feel we that it is can't hear you. okay. Now are you all able to hear me? Yes. Sorry, I just missed out. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने कुछ भी सुना वो खुशनूर जो मैंने बात किया स्टार्टिंग से इसके बारे में? हाँ, स्टार्टिंग में सुनाई हाँ दिया था, आप हाँ, रिकॉर्डिंग के बाद अच्छा जैसे रिकॉर्डिंग के बोला। बाद नहीं सुना, अनम्यूट किया था। ओके, तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको समझना है। तो अगर मैं बोलूँगी कि खुशनूर ये मेरा फर्स्ट फ्रेम है ना, ये फ्रेम इनकम्प्लीट लग रहा है, तो दैट माइट बी करेक्ट एट अ पॉइंट, एंड दैट माइट देन यू कैन ऑल्सो जस्टिफाई सेइंग दैट मैम आई वांटेड दिस काइंड ऑफ अ फील इन दिस पिक्चर, आई वांटेड दिस काइंड ऑफ अ एम्प्टीनेस इन दैट पिक्चर, एंड देन एम्प्टीनेस व्हाट वुड हैड हैपेंड इफ ये हमने एक लाइन ही नहीं बनाया होता। ये जो लाइन्स दिखते हैं एक दो लाइन दिख रहे हैं, वो अगर नहीं होते तो वो पूरा स्पेस दिखता और फिर भी एम्प्टीनेस दिखता। अभी वो एम्प्टीनेस बहुत डोमिनेट हो रहा है क्योंकि आपने उसको एक्चुअली एक कमरे में डाल दिया है, तो एक इनकम्प्लीटनेस और एम्प्टीनेस वो फील हो रहा है, अभी बहुत प्रोमिनेंटली फील हो रहा है। तो इस तरह से कंपोजिशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है। अभी यहाँ पे आप आओगे स्ट्रेट अवे ये वाले सेकंड कंपोजिशन पे आओगे, यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं लग रहा है कि कुछ इनकम्प्लीट है, मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे नहीं लग रहा है मतलब ऐसे ही लगना चाहिए। दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव एंड यू माइट एंड अप गेटिंग सम अदर काइंड ऑफ अ फीलिंग ऑल्सो, बिकॉज वट एवर वी आर लुकिंग एट, half of the time we will take things according to what we have in our eye। इसलिए हम बोलते हैं कि the beauty lies into the eyes of beholder। why we say that? because जो हमारे दिमाग में है, whatever our attitude is, whatever our perseverance, we start looking at that। so maybe this frame is complete for me, but maybe someone else might feel something else। so this is a very subjective zone, and in this zone we will it's very important that y'all understand as a creator. See, I always tell whoever is here, if they are going into architect, please realize what is exactly is making you all an architect. It's not, you all are not civil engineers, or you all are going into product. Then product has technical parts into it, but of course the product comes to a level, and not that the product designing only is about elite class, it is also about the connect how you will make to everything everywhere. Whoever the products are only not designed for a rich or cliched class, it's also designed for everybody. It's designed for a layman also, or a very nominal person also, and still it can come under a product design. And then how your product is going to create a connect with whatever crowd you are designing it for. So these kind of concerns become very dominant when you all are into creative fields, like I won't say creative field, when you are into free fields which are other than fine art. Fine art doesn't deal with this kind of a zone, because fine art just has that kind of a justification that it is very interpersonal. But none of the subjects which come under applied art, like applied art in the sense you get paid for what you're doing, and then there is a client involved and he has a requirement, and you have to actually show him that ki this is this, and then maybe the client doesn't like it, or maybe you need to make some changes. So this doesn't happen in fine art. Fine art is a total different zone, and there doesn't, these things do not even become a matter of consideration there. Absolutely no. But when you are totally into a field which is two way, it is not one way, it is two way. You are making it for someone, and someone has to uh, be happy with that. Only then you get to make that. That is how you are into applied art and commercial art and designing a manifestation of creativity on a commercial level. Is design is nowadays what is designing is all about. You do it as a commercial angle. The art which you are considering, artwork which you are doing it on a commercial level, people are paying you straight away for that, इज व्हाट इज कमर्शियल इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें ना ध्यान में आनी चाहिए। इसलिए हमने 5 शीट्स मैंने बोला है, और अलग अलग शीट में अलग अलग कंपोजिशन। अभी ये कंपोजिशन देखो, ये कंपोजिशन में क्या हो रहा है, ये टोटल खाली लग रहा है, ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टाइप का कंपोजिशन लग रहा है। आई एम नॉट सी आई एम लाइकिंग दैट कंपोजिशन, बट देन इट द कंपोजिशन ओनली टेल्स कि देर इज सो मच टू टेल।
there is so much to tell which the composition is not telling. So do you get that feeling that something is incomplete here? Again this picture has, और ये क्यों होता है कुशनूर? क्योंकि हमने ना सारे एलिमेंट्स बच के रखे, इसमें थोड़ा भी ओवरलैपिंग नहीं है, बहुत ही सिस्टमेटिकली आपने इसको अरेंज किया। यहाँ पे देखो ये वापस बहुत ही लाइव लगता है, ये बहुत ही लाइव है, ये जो आपने कंपोजिशन किया ना ये बहुत लाइव है। यहाँ पे आप आ जाते हो अगेन, यहाँ का पार्ट पूरा पीछे छूट जाता है और ऐसे लगता है कि दिस table is trying to tell us something, and this table is why it is trying to tell us something, because it is into foreground and it is trying to take your registration, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये पीछे की चीज़ें नहीं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही, लेकिन स्ट्रेट अवे आपसे ये टेबल कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और वो कंपोजिशन के मतलब ये अगर हमारा फ्रेम है, पिक्चर फ्रेम है, तो ये इतना सामने आ रहा है कि वो बहुत ही दिख रहा है। और वहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है कि सब कुछ ऐसे पर्पसफुली रखा है, ऐसे लग रहा है, जो कि इस पिक्चर में नहीं लग रहा है। ये पिक्चर हालांकि आपने बहुत ही कॉन्शियस तरीके से ये भी किया है और ये भी किया है। यहाँ पे जिस तरह से ये बुक रखा है, ये सब कुछ रखा है ना, ऐसे लग रहा है कि देर इज सम प्लान इन्वॉल्व इन कीपिंग दिस थिंग्स लाइक दैट। बट हियर इफ यू गो, you don't really feel that there is some plan involved. Again here you feel that there is some kind of a planning involved, where here you come at a ease. There is no planning involved, it is just there, it is very live. So when I am talking this, I am able to make a connect between this कि मैम exactly क्या बोल रही है and what is she trying to tell us or what is she trying to, and this feeling might be different for different people. It's absolutely different for different people. As I said, जो आप देख रहे हो, जिस तरह से आप देख रहे हो, what ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, वैसे ही जो आपको दिख रहा है उसका 60 से 70% आपको वो चीज़ इस तरह से दिख रही है, बिकॉज दैट इज हाउ यू परसीव इट इन योर ब्रेन मैक्सिमम टाइम। ओके, सो इफ यू आर a different kind of a person, if you, that's what we are looking for। आर्टिस्ट की नज़र अलग क्यों होती है? बिकॉज वो चीज़ों को, आम चीज़ों को बहुत अलग तरीके से देख पाता है, बहुत अलग तरीके से कनेक्ट कर पाता है, और आम चीज़ें ही करता है, कोई बड़ी बात नहीं करता है, कोई अलग चीज़ें नहीं करता है, लेकिन इस तरह से करता है कि वो आर्टवर्क लगने लग जाता है। क्या है, आपने चीटी बनाया है, पहाड़ बनाया है, क्या बनाया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज गोइंग टू बी आर्टवर्क, इट इज गोइंग टू बी नरेटिंग सो मेनी स्टोरीज, सेवरल स्टोरीज इन सिंगल फ्रेम, इट्स गोइंग टू टॉक अबाउट सो मेनी नरेशन। नाउ वी विल जस्ट सी संचिताज वर्क। आपको एक एग्जाम्पल की तरह बताती हूँ, फिर यू ऑल कैन कंटिन्यू योर वर्क। ओके मान्या, हैव यू सेंड एनीथिंग? डिड यू स्टार्ट मान्या? No, actually you've not started. Wait, we will just look at Sanjita's work. Even or Laiba's work. I mean, Laiba's work is more. She has done it really beautiful. अभी देखो ये काम. It's done so beautifully na. I cannot imagine that a small child who is in fifth grade is working on this level, and see how the distance is created. You can get this level. This is first level. Are you all able to see the cursor? This is first level. Then this Yes. is second level. Then again there is a space. Then again there is a space. So the amount of space which is covered, the amount of depth which is covered in this one frame. Again, when you come here, there is no distance covered, but yet there is lot of distance. There is nothing as such is working, which is going behind as such, which is going into the depth, but lot of space and vacuum is created. So now you have to understand the difference between creating depth and creating vacuum and creating space. ये फर्क है इस दोनों फ्रेम में। यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ है, सब कुछ फोरग्राउंड में आ रहा है। ये बहुत ऐसे अलग तरीके से, और ये बहुत ही अलग लेवल पे गया है, टेक्निकलिटीज के भी आगे गया है ये। तो मैंने जैसे बोला कि फाइन आर्ट वाले जोन में आप इसमें रहते हो कि आप टेक्निकलिटीज से आगे कर रहे हो काम, आपके लिए टेक्निकलिटीज मैटर नहीं करी। वेर इज एग्जैक्टली इन द डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर फील्ड और एनी, टेक्निकलिटीज आपके लिए हमेशा मैटर करती रहती है, और इसलिए आप लोगों के लिए डेवलपमेंटल प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज आपको ये समझ में आना ही चाहिए कि क्या जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, सामने वाला बंदा भी उसी लेवल पे कनेक्ट हो रहा है या नहीं, ये आपका बहुत बड़ा प्रायोरिटी बन जाता है। वेयर इन फाइन आर्ट ये प्रायोरिटी तो है ही नहीं, हम कनेक्ट कर रहे हो और खत्म हो गया वहाँ पे बात। ओके तो देखो किस तरह से छोटी छोटी चीजें, सी हाउ द ट्री इज केप्ट एंड हाउ दिस वैक्यूम इज क्रिएटेड हियर, एंड देयर इज अ बर्ड हियर एंड यू गेट अ स्पेस हियर टू व्यू। टाइनी, ये इतनी सी कैट विच इज जंपिंग, can you imagine how this is happening? And there is a tree, and there is this kind of a honeybee comb, and there is a fly coming, such a small frame, and the child is just thinking on that capacity. There is a basket kept here, and there is a small tiny bird here. How beautifully it is narrated.
it's absolute beauty. तो आई वॉन्ट दिस ब्यूटी, आई वॉन्ट यू ऑल टू, इट्स अ नॉर्मल थिंग. एक बास्केट है, एक बर्ड है, कौन सी बड़ी चीज़ है इसमें. लेकिन जिस तरह से उसने किया है, जिस तरह से उसने रखा है, हमें वो ड्रीम लैंड की तरह लगने लग जाता है. तो वो कैपेसिटी है ना, वही है आपका जो अगर आप आर्किटेक्ट भी बनना चाहते हो तो इस लेवल पे मत बनो कि सिविल इंजीनियर बन जाओ. जब भी आप वो कैपेसिटी रखते हो कि आप तो सिविल इंजीनियर अच्छे हो ही, लेकिन उसके आगे जाके आपके पास एक अलग चीज़ है जो कोई एक्चुअली नहीं फील कर पा रहा, वो फील सिर्फ आप ही दे पा रहे हो, और वो सिर्फ आप ही के जोन में है, तो आप स्पेशल बन जाते हो. और फिर वहाँ से आपका एक्चुअल सफ़र शुरू होता है. इट कैन बी एनीथिंग ना, इट डजंट नीड टू बी एन आर्किटेक्ट, इट कुड बी एनीथिंग. फॉर इंस्टेंट इट could be also a CA who is able to give things, or a doctor who is able to give things on a different level, where only he is giving it in that kind of a manner. Then it starts becoming special. Then he is no more, and I do not consider him a doctor, then he is almost like an artist for me. Okay, so this space I want you all to understand, and technically we will start this. Manya, are you able to make any sense when I'm talking these things? Are you able to make a connect between frames when I'm trying to tell you all? Okay, and this is the space which you will, who will tell you about these things are understood. यही सेम चीजें कोई भी आर्ट प्रैक्टिस में होती है, और ये आर्ट प्रैक्टिस को कमर्शियली इंप्लीमेंट करना ताकि लोगों को भी इसका कनेक्ट मिल जाए, ये हमारा अटेम्प्ट है व्हेन वी आर गोइंग इनटू डिजाइनिंग. ओके, ये हमें नहीं भूलना है. डिजाइनिंग में जाके हम क्या करें, तो हम हमारे लिए नहीं डिजाइन कर रहे, हम लोगों के लिए डिजाइन कर रहे हैं. तो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमें बहुत आसानी से ट्रांसफॉर्म करना है, आगे वाले के पास जो देख रहा है उसको वो दे देना है. वेरएज फाइन आर्ट में ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, ये कंसर्न लेटर हो जाता है, बिकॉज फाइन आर्ट टोटल अलग जोन है. और डिजाइनिंग, इसलिए डिजाइनिंग बोला गया क्योंकि उसका प्रॉपर डिजाइन है, उसका एक तरीका है, और वो क्यों किया गया. व्हेन आई से डिजाइनिंग, इट्स ऑल्सो आर्किटेक्चर. क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि हर बार क्या हर वर्ड को यूज़ करना है, तो मैं कभी कभी वो यूज़ नहीं करती. लेकिन आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड. अभी ये इतना हमने जो सुना है, इसके ऊपर जब भी आप फ्रेम्स बना रहे हो ना, आई वॉन्ट यू ऑल टू लुक एट स्मॉल स्मॉल थिंग्स, टू interact with those small things even before you put them into the frame. Okay, you have to have a total planning how this pictorial, see this thing, such a strong visual. I somehow feel she's copied it from somewhere or something, but how will she copy so much? She just did it in 1 hour and she sent it to me. ये देखो, ये क्या है, ये फ्रेम इतना मैजिकल फ्रेम है. ये पूरा यहाँ पे पूरा उसने कवर किया है फोरग्राउंड बड़ी चीज़ों से, और ये इधर है, और ये अगर है शायद रिवर है जो फ्लो हो रहा है, ये छोटी सी बोट है उसमें, पता नहीं क्या है, लेकिन जो कुछ भी है बहुत स्ट्रांग है एज अ फॉर्म, as an space composition. It is very strong. Okay, so now you all will start making. Vedika, I will just describe what is the assignment, and I will tell you, you are supposed to make this kind of blocks. Manya and Kushnur, you all can start to work with your complete heart whenever you're working on your frames. Okay, chalo, start, do it. I want you all to finish before Wednesday, so that in our follow-up session we are able to discuss whatever we are able to discuss. Okay, like just few things we discussed, and do not miss take it when I'm showing you the pictures of younger students, because they are much more creative, and it's a fact, and we have to accept it. There is nothing wrong in accepting that. The core creativity and the essence of creativity lies in simplicity and being small, and being only then you get that wonders. Otherwise इसलिए मैं हमेशा छोटे बच्चों का काम देख के फैसिनेट हो जाती हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अच्छा नहीं करते, दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग. मुझे अपना काम भी अच्छा नहीं लगता है उस बच्चे के सामने, तो क्योंकि वो उस लेवल पे काम करता है, प्योर वर्क. अभी हम तो प्रेशर के अंडर है, डिज़ाइनिंग में जाना है, और क्या करना है, करियर के इसमें जाना है, उसमें जाना है, ये सारा झमेला है. तो हम बहुत फेक हो जाते हैं अपने आप से, लेकिन बच्चे बहुत प्योर होते हैं. और इसलिए अगर हमने कोई चीज़ प्योर गोल्ड चाहिए तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, माइंड में. प्योर गोल्ड जहाँ पे प्योरिफिकेशन हो रहा है वहाँ से मिल जाएगा, फिर वो आपको प्रोडक्ट प्योर मिलेगा. दैट इज़ द सोर्स ऑफ प्योर ओरिजिनल गोल्ड. तो वही सोर्स है. छोटे बच्चे का काम देखोगे ना, तो वो ऐसे डेवलप करते. तो ये स्पेशली असाइनमेंट, यू नो, आई वांटेड टू शो यू ऑल दैट हाउ दिस इज वर्किंग and how beautifully they narrate things into small frames. Okay, now you all do it. Let me see how you all do it. Vedika, you are listening to all these things. What is the assignment? Yes, ma'am. This is the assignment.
I am soon going to make a presentation. I was just working out on who all are going to be in this batch. So this is the assignment which we are doing for composition. Okay, so the subject is composition. We are already done with 2 assignments which you are not done with, but you will soon join the batch. I was you will soon be get the video for those, so you can do those assignment also. I will explain you, and if there is anything you can call me personally or WhatsApp and you can know things. Okay, this is 3rd assignment in composition which we are doing. And other than that, what you're supposed to do, हे 2x2 इंचेसचे स्क्वेअर्स आहेत वेदिका, हे ठेव खाली. एक्स्ट्रा वाचेल थोडंसं त्याच्यात, तेवढ्या ह्याच्यात छोटे छोटे फ्रेम्स करायचे. असे 5 वर वर्कआउट करायचे. तर पटापट पहिले 15 मिनिटाच्या टाइम फ्रेम मध्ये पहिले तू लेआउट करून घे. लेआउट करताना पेन्सिल एकदम लाईट वापर. 2x2 इंचाचा एक स्क्वेअर आहे, तर तुला आता लेआउट करता येईल ना वेदिका? हो मॅम. हा, आणि 5 पेपर पहिले काही विचार करू, आणि त्याच्यानंतर प्रत्येक फ्रेम मध्ये आपल्याला एक नवीन स्टोरी काढायची आहे. स्टोरी बनवायची नाही. सी, डू नॉट अटेम्प्ट टू मेक अ स्टोरी, देन यू आर स्टक. स्टोरी शुड हैपन. इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट विच आई एम ट्राइंग टू टेल. डू नॉट अटेम्प्ट टू मेक अ स्टोरी. एक कुछ चीज रख दी. जैसे मैंने बोला कि अगर आप, मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि आपने एक चाय का कप किसी टेबल पे रखा है ना, वो अपनी स्टोरी खुद बनाने लगता है. अगर वो बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं वहां पे, और क्या है, जेई का बुक्स पढ़ा है वहां पे, तो वो हमें क्लियर हो जाता है कि ये स्टूडेंट का कप है जिसने ये पिया है. अगर वहीं पे कुछ एपरेटस है और कुछ लैब के थिंग्स है, वी नो दैट इट्स स्टेटोस्कोप रख दो, हमें समझ में आता है कि ये कप ना डॉक्टर ने पिया है. तो स्टोरी अपने आप से बननी चाहिए. स्टोरी बैठ के बनाओ मत. इसलिए हमें स्पॉन्टिनिटी से काम करना है. एक चीज बनाओ, उसके बाद उसके आसपास क्या बनाओगे वो सोचो. Okay, this is what I want. Do not work it the other way. I don't want a ready stories. I want कि एक चीज रखी है, उसके बाद आप स्टोरी बना रहे हो, और वो चीज सेंट्रलाइज रखनी है. ऐसे भी नहीं, आप उस फ्रेम में आपको जो एक स्क्वायर मिल रहा है उसमें वो चीज कहीं पे भी रखो. फॉर एग्जाम्पल, लेट से हमने शिप वाले असाइनमेंट में देखा कि शिप आधी बाहर भी चली गई थी, चलेगा, दैट इज ओके. तो उस तरह से आप उस चीज को कहीं पे भी रखो, और फिर उसके अराउंड कुछ चीजें बनाओ, और वो चीज अपने आप से वो स्टोरी बनाने लगेंगे. उसके बारे में हमें कॉन्शियस एफर्ट नहीं करना है. ओके, सिर्फ हमें बहुत स्पॉन्टेनियस और जेन्युइन रहना है. हमारे दिमाग में जो आ रहा है ज्यादा नहीं सोचना है. जैसे कि बच्चे होते हैं, जो आ रहा है वो, रोने आ रहा है रोया, हंसने आ रहा है, आप अच्छे नहीं लगते, आई डोंट लाइक यू, स्ट्रेट अवे. तो वो जो स्पॉन्टेनिटी है ना, वो आपको अपने आप से स्टोरी टेलिंग में लेके जाती है. ओके, कम ऑन, स्टार्ट, डू इट. Yes, ma'am. Yeah.